Okay, a very good evening to one and all. Hope my screen is visible and I am audible to each and everyone. Please let me know in the chat box if it is so that we can move on. My screen visible, I am audible to everyone. Quickly, guys. Chaliye. So yesterday there was some minor error when I was explaining this question number one, which when I was seeing the records, I realized this. So here what we mention as what you called as herbivore, that was not herbivore, that was actually producers, right? ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर के पास एनपीपी होगा, राइट? ऑटोट्रॉफ्स स्लैश प्रोड्यूसर्स आई शुड से, इनके पास जो है वो 1% जो अमाउंट बचा था विच वाज 10,000 जूल इन द फॉर्म ऑफ एनपीपी, वो इनके पास होगा, ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स के पास, राइट? दिस वाज अ माइनर करेक्शन. And then we will have herbivore, which is a primary consumer. Over that, we will be having carnivore, which is secondary consumer. And then we have omnivore, which is tertiary consumer. So here, 1000 joule. Here, 10% is 100 joule. And in last, it is 10 joule. In this manner, it becomes the 10 joule. And hence, 10 joule was the correct answer. Our apology for the same, because it was like by chance, it is a slip of tongue, like we wrote down the herbivore in place of autotrophs or producers. So I should correct it. Now let's move to the very next question which we were discussing, and that is question number 61, which we will be discussing today and starting for the upcoming questions. So let's move to the question number 61. Right. And I hope that nobody is having any issue in the questions which were discussed yesterday, and all enjoyed reading the solution after discussion of the question, because it will put up a different level of clarity in your brain. Once the question is discussed, then you can actually frame out thing in easy and well manner. So this is a very easy question directly taken from your booklet, right? Directly taken from your booklet, and it's from air pollution devices, which is given in booklet number 1, directly coming from your booklet. And the question was very simple, and you could have easily neglected the options and would have reached to the right answer, but there could be n number of methods of doing a question. So that's why we will take that approach also, that how we could have reached to the question easily, right? So here you have been asked about the devices, and devices, they are basically asking you that which is the basic principle. So question number 61 say which of the following air pollutant control particle collection devices use force of gravity to aid the collection of particle by exploiting the terminal velocity. So basically it should be based on terminal velocity, right? So as far as the electrostatic precipitator are concerned, which basically called as ESP, they are based on the acquisition of charge by the particle. So when we teach you people ESP is basically a device which is basically used for the control of particulate matter, and where the dust particles acquire the charge through the corona discharge, and then they are collected on a plate. So this, all of you are well aware that an electrostatic precipitator is a device used to remove the particulate matter such as dust, smoke, and ash from the flue gas in the industrial process by using the principle of electrostatic force. And it is highly efficient and widely used in the power plant, cement plant, and other industries where air pollution control is critical. So all of you are aware that electrostatic force of attraction between the particle and the plate is essential for the working of the ESP, and it is quite efficient devices. And all you people are aware about the mm, you people are also aware about the bag houses, which is another option. And two terms are new, which one is the elutriator, another one is super saturator. So we will talk about each of one of them.
The second option was illutriator, right? What actually an illutriator is? An illutriator is a device used to separate the particle based on their size, shape, and density using a fluid, usually air or water, moving in a controlled vesicle flow. And it operates on the principle of differential settling velocity. तो जो vs आप रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा से कैलकुलेट करते थे, पार्टिकल की डिफरेंशियल सेटलिंग वेलोसिटी के बेसिस पे ही इल्यूट्रिएटर काम करता है। ये लाइन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि भाई आंसर यहाँ पे इल्यूट्रिएटर होगा, राइट? But I should also know about the details of the other option. So where the particles settle or remain suspended depending on their size and the velocity of the fluid. तो ये एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ मेंशन है। जस्ट अ मिनट। चलिए, राइट। सो बेसिक प्रिंसिपल जो सेटलिंग वेलोसिटी का है वो इल्यूट्रिएटर के लिए है, और टर्मिनल या सेटलिंग वेलोसिटी आपकी यहाँ पे यूज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। So every particle has a characteristic terminal velocity which is constant speed and it reaches the downward gravitational force is balanced by upward drag force। जो मैं आपको डेरिवेशन भी हमेशा करवाता हूँ इन एयर पोल्यूशन, दैट Vs इज इक्वल टू रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा। तो उस डेरिवेशन के बेसिस पे आपको यह समझ में आना चाहिए था कि दोनों फोर्सेस जो है आपकी बैलेंस होंगी, then only we will be able to then we will be able to justify the same। तो यहाँ पे इल्यूट्रिएटर इज द मेन डिवाइस विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टर्मिनल वेलोसिटी। अपवर्ड फ्लू का फ्लो जो होगा आपका, बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो पार्टिकल है आपके, जैसे सपोज ये मेरा एरोडायनेमिक डायमीटर डी है, इसका डाउनवर्ड वेट एम जी है, और अपवर्ड इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लग रही है एफ एस, तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी, एंड एफ एस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी एस इज इक्वल टू एम जी। इस तरह का डेरिवेशन हमने वहां पे किया था, on the basis of which you derive the settling velocity, which is rho g d square upon 18 eta। So here the settling velocity is the main criteria which can be used for the separation of these particles, and such kind of device is called illutriator, right? तो illutrated कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसमें वर्टिकल कॉलम होता है, फ्लूइड इनलेट होता है, कलेक्शन चैम्बर होता है, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, सारा हमने ये मेंशन किया है कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। पार्टिकल साइज की क्लासिफिकेशन के लिए, डस्ट एंड एयर क्वालिटी एनालिसिस के लिए, सॉइल एंड सेडिमेंट एनालिसिस के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए। एडवांटेज है क्योंकि ये प्रिसाइज है, ठीक है, बहुत प्रिसाइज है, आप साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी है कुछ जो हमने बताई। तो इल्यूट्रिएटर एक बहुत अच्छा डिवाइस है। बैक फिल्टर्स के बारे में ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सिलिकॉन फाइबर फिल्टर्स where the particles get attached or adsorb on the surface of those bag, and then they are removed after shaking. So a bag house or fabric filter is an air pollutant control device. Capture particular matter, dust, ash, and other fine particle from industrial exhaust gases using fabric filter bags. And it is widely used in industries such as power plants, cement manufacturing, steel production, chemical process to ensure the comprehensive with regulation। मैंने बताया भी था when we were teaching you air pollution devices। वी ऑल्सो टोल्ड यू दैट ये 100% एफिशिएंसी हम मानते हैं इसकी, स्पेसिफिकली पीएम 2.501 के लिए बैग हाउसेस की। जो लास्ट ऑप्शन आपको दिए है सुपर सैचुरेटर्स, दैट इज समथिंग न्यू, राइट, विच एवरीवन शुड नो। So what do you mean actually by the super saturators? So super saturators in air pollution control, a super saturator is device used to control particulate matter and certain gaseous pollutant by enhancing condensation process। It operates by cooling the gas stream rapidly to create supersaturated conditions, leading to the formation of fine liquid droplet। मतलब जो भी आपका pollutant निकल रहा है hot, उसको आपने किसी तरह से कंडेंस कर लिया, वो ड्रॉप की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड दीज ड्रॉपलेट्स आर देन रिमूव थ्रू द मैकेनिकल सेपरेशन, राइट। तो इसके अंदर आपका एक गैस स्ट्रीम इंट्रोडक्शन होती है, पहले जो पॉल्यूटेड गैस होगी उसको आप एंटर कराओगे, सुपर सैचुरेटेड टिपिकली एट हाई टेम्परेचर एंड कंटेनिंग पर्टिकुलर मैटर एंड सॉल्युबल गैसेस। फिर कूलिंग करेंगे, सैचुरेशन कराएंगे,
और वो पार्टिकल कूल डाउन होके आपके नीचे आ जाएंगे और ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली क्या है कि हमें कंडेंस करके निकालना है उसको, राइट। हमें कंडेंस करके निकालना है, और की कंपोनेंट भी हमने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बट एज सच आपको कंस्ट्रक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, कि जो आप ये सुपर सैचुरेटेड की बात करते हैं, तो ये फाइन पर्टिकुलेट मैटर को भी कंट्रोल करते हैं, जस्ट पीएम 2.5 एंड PM1, एंड दे आल्सो रिमूव द सॉल्युबल गैसेस लाइक SO2, अमोनिया एंड अदर वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट, डिसॉल्विंग देम इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी काफी ज्यादा ये यूज आपके होते हैं। तो एज पर द details which have been mentioned in this question and the question which they ask you, a very simple answer can be derived from here, that आप इसको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जी इलूट्रिएटर वो डिवाइस है जो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी के बेसिस पे पार्टिकल्स को सेग्रीगेट करता है। तो द करेक्ट आंसर हेयर फॉर दिस क्वेश्चन इज इलूट्रिएटर, राइट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 61। किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क अस अबाउट द क्वेश्चन। कोई भी डाउट डिस्कशन आपको यहाँ करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है when you can debate on the details of these questions, right? We still have a lot of time in exam. अभी भी आपके पास बड़ा बड़ा हम देखें तो 11-12 दिन हैं, which can be sufficiently enough for the revision of each and every unit. लेकिन ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इन एंड अराउंड अगर क्वेश्चन दोबारा से रेज होता है तो यू शुड बी इन अ स्टेट टू आंसर द सेम, राइट। चलिए, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है, जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर खाली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। जो कोरोना डिस्चार्ज से जब पार्टिकल पास होते हैं, उनके ऊपर जो चार्ज एक्वायर होता है और कलेक्शन प्लेट के बीच में जो अपोजिट चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे वो डिपेंड करता है। इसीलिए रश्मि जी हमने यहाँ पे ESP नहीं लिया है। इज इट क्लियर? ESP क्यों नहीं लिया है, जल्दी बताइए। क्लियर है रश्मि को? रश्मि शर्मा फ्रॉम JNK, क्लियर है? भाई रिप्लाई करो। चलिए जी, आई गेस शी गॉट द आंसर। तो ग्रेविटेशनल चैम्बर आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहे हैं? ग्रेविटेशनल चैम्बर आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहे हैं, मुझे ये बताओ। ऑप्शन भी तो देखोगे, ऑप्शन में चूज करना है ना। ठीक है, आपको ऑप्शन में चूज करना है, आपको अपने से आंसर नहीं देना है। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान रखें। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टफ। क्वेश्चन नंबर 62 विच शुड बी आइडियली आस्क्ड इनटू नीट, बट यहाँ पे जिन्होंने भी ये क्वेश्चन रखा है उनका मन था तो उन्होंने रख दिया, ही माइट बी अ बिग फैन ऑफ इकोलॉजी। बट मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का कोई भी क्लू बनता है फॉर द पीपल ऑफ मास्टर्स। मास्टर्स के लोग इज नॉट गोइंग टू रिमेम्बर कि इस डेट में अर्नेस्ट हैकेल ने काम किया, इस डेट में यूजीन ओडम ने काम किया, इसमें रीटर ने काम किया, इसमें जॉफ्रे सेंट हिलेरी ने काम किया। बट फिर भी वी हैव ट्राई टू गेट इनटू द एनोलॉजी, राइट। अब पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें देखना क्या है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो साइंटिस्ट आपको दिए हुए हैं, इन्होंने इवोल्यूशनरी इकोलॉजी के अंदर या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर जो काम किया है, वी हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पुराना कौन है, उसके बाद नया कौन है, उसके बाद कौन है, इस तरह का हमें अरेंजमेंट एक देना है, राइट। लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन भी यही कहता है that arrange the following scientists in order of their contribution in the evolution of branch of ecology। या आप ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी की जो ब्रांच है उसको आगे बढ़ाने में या उसको प्रोग्रेस कराने में किस किस लोगों ने साइंटिफिकली क्या क्या कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, राइट। तो जिन जिन लोगों ने साइंटिफिकली जो जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वी विल कीप इन माइंड एंड देन वी विल अरेंज, राइट। तो जो सबसे पुराना नाम है इसके अंदर वो जॉफ्रे सेंट हिलेरे का है।
राइट। अगर आप हिस्टोरिकली पढ़ेंगे इकोलॉजी की स्टडीज को, तो जोफ्रे सेंट हिलोरे जो है वो आपके एक्टिव रहे करीबन 1772 से 1844 तक। राइट। और इनका बेसिक कंट्रीब्यूशन था जो he was a French naturalist who emphasized on the influence of environmental factor on the structure and behavior of organism। इन्होंने पहली बार ये कहा कि जो environmental factors होते हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, they will definitely going to have the impact on the behavior of organism, या जिसको आप कहते हो behavioral ecology। एंड इन्होंने ही unity of composition principle suggestion that all the living organisms share a common structural framework, and his work is in the earlier 19th century 1836 provide the conceptual foundation for the studying of organism environmental interaction, जो ह्यूमन या इकोलॉजी जो मेन ब्रांच निकल के आई। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पहले काम नहीं किया। बाद में इनका जो वर्क है वो री रिकॉग्नाइज हुआ। राइट। इनका वर्क जो है वो री रिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है ना। तो वो री रिकॉग्नाइज वाला ईयर है 1818 और 1836, लेकिन ये काम बहुत पहले से कर रहे थे। 1772 से मतलब 1772 से ये रहे, लेकिन इन बिटवीन 1800 के आसपास भी इन्होंने काफी काम किया। ठीक है। अगर आप देखें एज वाइज भी देखें आप, तो 28-30 साल की एज इनकी रही होगी जब ये 1800 में पहुंचे होंगे। ठीक है। तो उस समय तक इन्होंने काफी काम किया। तो ये सबसे पहले और पाइनियर पर्सन थे, जोफ्रे सेंट हिलोरे जो है, इन्होंने सबसे पहले काम स्टार्ट किया। ठीक है। आज मुझसे किसी ने पूछा था कि सर ये इनके वर्क को रिकॉग्निशन वाली बात है। जैसे अब देखिए आप, जो मेंडल थे, व्हेन ही वाज प्रपोजिंग दोज लॉज जेनेटिक्स के, तो सब उनको पागल बोल रहे थे। एंड उनका वर्क रिकॉग्नाइज हुआ कहीं उनके डेथ के बाद, कि हाँ भाई इसने जो रूल्स दिए थे मेंडल ने, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे वर एक्चुअली रियलिस्टिक। तो कई बार क्या होता है कि आपके जाने के बाद आपका वर्क रिकॉग्नाइज होता है। जैसे मनमोहन सिंह का आपने देखा, तब लोग नहीं इतना रिकॉग्नाइज करते थे, बोलते थे ये तो म्यूट प्राइम मिनिस्टर है। But if you look into the longer perspective and even in the science and research also, these ICERs and the new IIT are given by Dr. मनमोहन सिंह। ठीक है। तो इकोनॉमी के साथ साथ उन्होंने साइंस और रिसर्च में भी साइलेंटली बहुत सारा काम किया, विच माइट नॉट बी लाइक्ड बाय द पीपल हु डू नॉट प्रमोट एजुकेशन। कोई पार्टी या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट कि उनके वर्क को आप रिकॉग्नाइज करें, कब करें। सेम यहाँ पे है कि ये जोफ्रे सेंट हिलोरे का री रिकॉग्निशन वर्क का जो है 1800 में हुआ, लेकिन इनका काम पहले से चल रहा था। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश किया। देन केम अर्नेस्ट हेकल। इनका नाम भी आपने सुना होगा जिन्होंने भी इकोलॉजी पढ़ी है। अर्नेस्ट हेकल का नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है इकोलॉजी में, और इनका इरा रहा 1834 से 1900 तक का। ठीक है। और हीकल का मेन कंट्रीब्यूशन ये है, जर्मन जूलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इकोलॉजी टर्म 1866 में दी थी। राइट। और इन्होंने ही इकोलॉजी को डिफाइन किया था सबसे पहले, हीकल ने। एंड ही सेड इकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म विद देयर बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। और इन्होंने एक जर्नल भी आपका पब्लिश किया था, जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म 1866 में, वे ही डिस्कस द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर एनवायरनमेंट। तो बाद में इन्होंने एक पेपर भी बहुत अच्छा पब्लिश किया, वेयर इट हैज बीन रिकॉग्नाइज कि कैसे एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है। थर्ड वाज आर्थर स्टेंसले। राइट। है ना। थर्ड जो है आपका वो आर्थर स्टेंसले का था 1871 से। तो ये तो इकोसिस्टम के बारे में तो आप जानते ही है कि ये स्टेंसले साहब थे, इन्हीं का ये टर्म है इकोसिस्टम। राइट। और ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इकोसिस्टम टर्म क्वाइन की 1935 में। राइट। और इन्होंने इस इंपॉर्टेंस को भी बताया कि सिस्टम दैट इंक्लूड ऑर्गेनिज्म इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड प्लेड द की रोल इन द इंटीग्रेटिंग इकोलॉजी इनटू ब्रॉडर साइंटिफिक डिसिप्लिन इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन कंजर्वेशन। तो यहाँ से लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं, हमें ना ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, वी हैव टू सस्टेन इन द ब्रॉडर वर्जन। राइट। देन कमिंग नेक्स्ट वी हैव ओडम। राइट। यूजीन ओडम का नाम आपने बहुत सुना होगा, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी आप कहते हैं। ओपी ओडम अलग है, ये यूजीन ओडम अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहीं आप सोचो ओपी ओडम से ऐसा कोरिलेशन होगा, ओडम की बुक हम पढ़ते हैं। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इनको बोला जाता है। एंड इन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी 1953 में वन ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट बुक टू फॉर्मलाइज इकोसिस्टम इकोलॉजी।
एंड हीज वर्क हाईलाइटेड द एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आजकल हम बात करते हैं ना, वो ऑडम साहब के दिए हुए हैं, राइट। तो ये सबसे लेटेस्ट आदमी है, 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है, राइट। देन रीटर की बात होती है। रीटर देखिए, रीटर जो है ना, रीटर का काम जो है बहुत ही अंडर वैल्यूड है। रीटर ने बहुत थोड़ा काम किया है और बहुत ही कम लोगों को पता है कि रीटर का कोई इकोलॉजी से लेना देना था, राइट। हालांकि ये नीट वीट में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। हैनस रीटर जो है आपके, ठीक है, जो यहाँ पे नाम दिया हुआ, तो हैनस रीटर इज क्रेडिटेड विद द कमिंग द टर्म ecology in 1885 by combining the Greek word oikos and logos to study. However, it was German biologist Ernest Haeckel who first defined the term ecology in 1886. अब देख रहे हैं, सिर्फ एक साल पहले का काम है इनका। रीटर का जो काम है वो हीकल से सिर्फ एक साल पहले का है, इसीलिए ई पहले आया है और बी बाद में आया है। तो बहुत से लोगों को लगेगा कि यार इनका तो ये तो जो है अर्नेस्ट हीकल का टर्म है इकोलॉजी। नहीं, जो आपका ग्रीक वर्ड था ओइकोस और लोगोस, वो इन्होंने प्रपोज किया था, हैनेस रीटर ने। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना था कि जो हैनेस रीटर है वो पहले आए हैं हीकल से, और यूजीन ओडम लेटेस्ट है, और जेफरे सेंट हिलोरे जो हैं वो सबसे पुराने हैं। तो अब इसको अगर आप अरेंज करेंगे ना, तो अब आपको ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएगा एकदम ठीक, करेक्ट, विच इज सेकंड ऑप्शन। और ऑप्शन आप देख भी सकते हैं, अगर सेकंड ऑप्शन में देखूंगा तो डी सबसे पुराना है, राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू, विच इज सबसे पुराने जॉफ्रे सेंट हिलरे। देन वी हैव हैनस रीटर जिन्होंने ओइकोस और लोगोस प्रपोज किया। फिर वी हैव अर्नेस्ट हीकल विच इज बी, एंड देन वी हैव आर्थर स्टेंसले, ठीक है ना। एंड देन फाइनली वी हैव यूजीन ओडम जो मॉडर्न इकोलॉजी के आप फादर बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये सीक्वेंस में अरेंज कर सकते थे, पर इस क्वेश्चन का ना कोई मीनिंग नहीं है मास्टर्स वाले बच्चे के लिए। ये क्वेश्चन आते हैं नीट वीट में 12th लेवल के, ठीक है ना। हाँ, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपकी क्वेरी अब आंसर हो गई होगी, ठीक है, कि मेन इसका पर्पस क्या था। क्लियर है मित्तल खत्री को? ठीक है जी। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर आपका 63। 63 क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है गाइस। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके घर से, या दिल्ली में अगर आप रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी है, जो उसकी ट्रक आती है पिकअप टू कलेक्ट द वेस्ट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। और क्योंकि ये इनिशिएटिव बहुत आजकल चल रहा है, स्पेशली इन दिल्ली इफ यू सी, है ना, है ना, कूड़े वाला आया, ठीक है, घर से कूड़ा निकाल, ठीक है, ये सॉन्ग आपको बजता हुआ सुनाई देगा सुबह 7 बजे से लेके कहीं 9:30 तक, कहीं 10:30 तक, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। मल्टीपल राउंड भी लेने पड़ते हैं उनको। तो कॉमन सेंस से अगर मैं जाऊं, तो कॉमन सेंस से जाने में तो इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही इजीली सॉल्व कर लेता, पर हम हर ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे, राइट। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि डिस्कशन से आपके कंसेप्चुअल वे में बहुत क्लियरिटी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इट आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डेली ट्रक रूटिंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन। तो जो गाड़ी आती है कूड़े की कलेक्ट करने के लिए, एमसीडी की, राइट, वो कलेक्ट करती है, सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करती है आपके घर से, है ना। तो उसमें क्या डिसएडवांटेज है, राइट, हमें ये बताना है कि डिसएडवांटेज इनमें से क्या है। तो पहला ऑप्शन जो दे रहा है, दैट रूट साइज कैन बी एडजस्टेड फॉर लोड डिपेंडिंग अपॉन कि किस रूट को आप ले, कितना कूड़ा किस जगह से मिलेगा, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। रूट साइज को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये तो एक एडवांटेज हुआ, ये डिसएडवांटेज कहाँ हुआ? तो ये तो आपका एडवांटेज है, दिस इज एडवांटेज। ये फायदा है इस मेथड का, ये डिसएडवांटेज नहीं है बॉस। सेकंड, सेकंड में कहता है इट प्रोवाइड्स, जस्ट सेकंड में कहता है जी आपको, दैट इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू क्रू फॉर गेटिंग इट डन अर्ली।
अब ये भी है कि अगर जितनी जल्दी वो लोग पूरा कर देंगे काम, उनके लिए इंसेंटिव होता है कि आज हमने इसको 11 बजे तक खत्म कर दिया, 12 बजे तक भी खत्म कर दिया, तो ये फायदे का है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे तो आपको उसका इंसेंटिव दिया जाता है एज पर द लॉ, तो ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, तीसरा आपको कहता है कि वेरिएबिलिटी इन द लोड ऑन डे टू डे बेसिस। अब एक बात बताओ, आप तैयारी करके आए हैं कि मुझे 1 टन वेस्ट मिलेगा और मिल रहा है जी आपको वहां पे 300 kg सिर्फ, तो वो आपका तो सारा मैटर गड़बड़ हो गया, आपकी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत कम काम हुआ। ठीक है, जो आपने लोग अरेंज करे थे वो उसके लिए करे थे। अब जैसे ये बिल्कुल ही वही वाली बात है कि मान लो किसी ने पार्टी में 600 आदमी का खाना बनवाया, तो पार्टी में आदमी आए 200, तो 400 आदमी का खाना तो वेस्ट है। तो अगर वेरिएबिलिटी होगी लोड की ऑन डे टू डे बेसिस, तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। हम अंदाजा कैसे लेंगे कि ऑलमोस्ट इतना वेस्ट डेली पिक होता है, कि एक दिन 50 किलो हो रहा है, एक दिन 500 किलो हो रहा है, तो बड़ा गड़बड़ है ये तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, और यही करेक्ट आंसर है आपका। इट इज अ डिसएडवांटेज। ये यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होना चाहिए एक एरिया के लिए, एवरेज जो वेस्ट है। अगर ये वेरी करेगा तो ये एक डिसएडवांटेज है, ये एक घाटा है, और यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कहता है दैट होम ओनर नोज व्हेन द रिफ्यूज विल बी पिक्ड अप। ये भी एक एडवांटेज है, जैसे आपने एक गाना बजा दिया, ठीक है, कूड़े वाला आया घर से कूड़ा निकाल, तो सबको पता चल जाता है। या फिर दूसरा सॉन्ग बजता है, ठीक है, स्वच्छ भारत वाला, ठीक है ना, तो स्वच्छ भारत वाला सॉन्ग बजता है, सबको पता चल जाता है भाई कूड़े की गाड़ी आ गई है, फटाफट से लेके चलो। तो ये भी एक एडवांटेज है ना, कि अगर उन्हें टाइम पता है कि 7 बजे या 8 बजे, जितने भी बजे उनके एरिया में गाड़ी आती है, तो दे पीपल विल बी कॉन्शियस एंड दे विल थ्रो द वेस्ट इनटू दैट पिकअप वैन। तो ये भी एक तरह का एडवांटेज है। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसको कोई भी जो बच्चा इन्वायरमेंट पढ़ता है आराम से इसको रिजॉल्व कर सकता था इस क्वेश्चन को। और करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे थर्ड आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। वेरिएबिलिटी इन लोड ऑन डे टू डे बेसिस ही एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे, ये डिसएडवांटेज है, तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। और हमने सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं यहाँ पे आपको, ऑप्शंस में आपको कुछ भी इशू इसमें नहीं आएगा एज पर माई कन्वेंशन इज कंसर्न। मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन काफी टाइम पहले गेट में भी आया था 2021 में। ठीक है, तो मैंने हर ऑप्शन के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा एडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है ना, तो ये आपको पता चल जाएगा। और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड होगा, वेरिएबिलिटी इन लोड ऑन डे टू डे बेसिस। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी बताइए, एनीवन हैविंग एनी डाउट? जल्दी बताइए भाई, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो अभी बता सकते हैं। क्विक एंड फास्ट, क्लियर है? ठीक है, चलिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये मैडम ने आपको पढ़ाया भी है टी टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है पहले, या कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी हुआ है बहुत पहले, और अच्छे से आपको पता भी है इसके बारे में। तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 64। क्या कहता है ये? 64 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है फटाफट से। देखिए, it says which of the following statement is true with respect to application of t distribution for test of hypothesis। तो टी टेस्ट का बेसिकली आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको सारी चीजें पता होंगी, तो हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस ही कर लेते हैं, और फिर हम लौट के आ जाएंगे कि भाई टी टेस्ट के बारे में। पहला ऑप्शन कहता है इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। भैया किसने कह दिया? टी टेस्ट में तो मीन यूज होता है, तो ये तो पैरामेट्रिक टेस्ट है।
पहली स्टेटमेंट जो है, इट इज इनकरेक्ट, द टेस्ट इज पैरामेट्रिक टेस्ट बिकॉज इट मेक्स स्पेसिफिक assumption अबाउट द डाटा, नॉर्मेलिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो गलत है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, आप कह रहे हो जी नॉन पैरामेट्रिक होगा, ये क्लियरिटी हमारे माइंड में आई, ये पैरामेट्रिक होता है। दूसरा कहता है इट टेस्ट वेदर द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, जो एम माइनस म्यू आप करते हो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस देखते हो, है ना, आप करते हो ना, टी इज इक्वल टू एम माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाय रूट एन, राइट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है और इन्होंने जायज बात यहाँ पे लिखी है, इट टेस्ट वेदर द सैंपल है डिफरेंट सिग्निफिकेंटली। तो द करेक्ट वन स्टेटमेंट यूज द टी टेस्ट इज द सैंपल मीन सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। फिर चलते हैं सी ऑप्शन पे, इट टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये भी करेक्ट है है ना। तो जो टी टेस्ट है आपका, इट टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट, दिस इज करेक्ट एज टी टेस्ट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो और नॉट। इसको हम यूज कर सकते हैं एक्चुअली में। देन वी हैव डी स्टेटमेंट, इट टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोवेरिएशन, ये गलत है, ठीक है। जो कोवेरिएशन होता है वो इससे हम टेस्ट नहीं करते हैं भाई, राइट। Covariation refer to the general relationship between two variable, but the t-test is not directly used for testing the covariation. Covariation को हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज कर लीजिए या कोरिलेशन यूज कर लीजिए, पर टी टेस्ट यूज नहीं होगा इसमें। देन आपका आता है ई, ई कहता है क्या, ई कहता है इट टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये आप यूज कर सकते हैं। The t-test is frequently used in regression analysis to determine if a regression coefficient significantly differ from zero or not. तो ये आप कर सकते हैं। तो जब मुझे पता चल गया है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मेरे लिए क्वेश्चन का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं गया। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन कौन से ट्रू है ना, कौन कौन से जो है ट्रू है। तो यहाँ पे यही देखिए पूछा है इन्होंने कि कौन कौन से ट्रू हैं, तो मुझे तो पता चल गया है कि इसमें से सिर्फ बी सी डी ट्रू है, या मैं ये कह सकता हूँ कि कौन से गलत है। तो गलत वाले आपके दो ही हैं, एक तो ए गलत है, ठीक है, और दूसरा डी गलत है। तो ए और डी को आप कट कर दीजिए, ये गलत वाले हो गए। तो सही वाले आपको अपने आप पता चल गए कि भाई बी सी ई सही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जल्दी बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताओ भाई, देखो इतना टाइम मत लो इसलिए। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 64? जल्दी से। क्लियर है? हम्म, चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं हम लोग। भाई ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ इतनी टेंशन लेने की बात थी, क्योंकि ये थोड़ा सा आइडिया अगर आप ले लेते तो शायद ये आंसर आराम से आप कर पाते। इसमें सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है, कि जो लोअर प्लेन बेड होते हैं वो पहली स्ट्रक्चर होती है जो बनती है जैसे जैसे पानी की वेलोसिटी बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जैसे किसी रिवर के अंदर पानी बढ़ता है, जैसे गांव में आप देखते हो ना कि नॉन मानसून सीजन में रिवर की क्या कंडीशन है, और जैसे जैसे मानसून आ रहा है, फ्लड आ रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना था, ठीक है, वही आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना था। अब देखिए जस्टिफाई करेंगे कैसे उसको, ये देख लीजिए फटाफट से क्विकली। तो 65 क्वेश्चन में क्या कहता है, अरेंज द सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन अंडर इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर, कि जैसे जैसे पानी की स्पीड बढ़ती है किसी रिवर के अंदर, तो भैया उसमें सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं ये बताइए, है ना। तो पहले इन पे डिस्कशन ही कर लेते हैं हम। जो ऑप्शन दिए हुए, लोअर प्लेन बेड, स्मॉल स्केल रिपल, लार्ज स्केल रिपल्स, ठीक है ना, अपर प्लेन बेड और एंटी ड्यून्स। अब देखो जैसे ही आप पढ़ोगे ना, वर्ड आपको टेक्निकल लग रहे हैं,
पर इतने सिंपल लॉजिक के साथ ये वर्ड हैं कि आप इसको इजीली आंसर कर सकते थे। जिन्होंने भी नहर वगैरह अपने गांव में देखी है, नदियां देखी है, दे कुड हैव इजीली। ठीक है। तो लोअर प्लेन बेड कब बनता है? फॉर्म एट लो वाटर वेलोसिटी कैरेक्टराइज बाय फ्लैट प्लेनर बेडिंग। तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा आपको, कटा फटा नहीं दिखाई देगा, उतना पानी नहीं है, पानी नीचे चल रहा है। ठीक है। जैसे यमुना को भी आप अगर देखो नॉन मानसून सीजन में, आपको ऐसा लगेगा अरे बिल्कुल एकदम अ, गया काम से। या फिर हरिद्वार वगैरह में आप देखो तो वैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी कि पानी नीचे उतरा रहता है ना। इनफैक्ट ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप जाएं ऋषिकेश में, जो आपका परमार्थ धाम जो बना हुआ है, जहाँ पे आरती होती है, वहां पे आप देखेंगे पानी ऊपर तक नहीं आता नॉन मानसून सीजन में, कभी थोड़ा नीचे तक रहता है, और सैंड वाला जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा रहता है। तो दैट इज समथिंग व्हाट यू कॉल्ड एज लोअर वाटर वेलोसिटी में फ्लैट और प्लेनर बेडिंग होती है। पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, ना मड चढ़ेगी ऊपर। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लेनर बेडिंग, है ना। तो वो आपका प्लेनर बेड है एक तरह का, पर कब? नॉन मानसून में, क्योंकि वेलोसिटी तभी कम है। ठीक है। नॉन मानसून सीजन में वेलोसिटी आपकी कम है। ठीक है। तो वो आपका हो गया लोअर प्लेन बेड। उसके बाद क्या है कि सेकेंड ऑर्डर आपका आता है स्मॉल स्केल रिपल्स का। ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे, है ना, फॉर्म्स ऑफ वाटर वेलोसिटी इंक्रीज स्लाइटली क्रिएट स्मॉल रिपल ड्यू टू द बेड लोड ट्रांसपोर्ट। तो थोड़ी बहुत लहरें उठेंगी उसके अंदर, ऐसे ऐसे चलेगा, हल्का हल्का। ठीक है। हल्का हल्का चलेगा, आप देखते भी होंगे रिवर बेड के अंदर। तो स्मॉल स्केल रिपल्स उसमें आने चालू हो जाते हैं, है ना। देन लार्ज स्केल रिपल आएंगे कब? जब थोड़ी सी ज्यादा स्पीड होनी चालू हो जाएगी, तो पहले पता चल जाता है भाई लहरें उठ रही हैं। लार्ज स्केल रिपल अकर मॉडरेटली हायर वेलोसिटी फॉर्मिंग लार्जर रिपल्स और ड्यून्स ड्यू टू द इंक्रीज स्ट्रेंथ। उसके बाद आपके अपर प्लेन बेड बनेंगे, डेवलप द हाई वाटर वेलोसिटी वेयर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट बिकम शीट लाइक फॉर्मिंग प्लेनर लैमिनेशंस। तो शीट टाइप आपका डिपॉजिट हो जाता है मिट्टी का ना, चढ़ती चली जाएगी एक दूसरे के ऊपर। और लास्ट में आपके जो हैं वो बनेंगे जी एंटी ड्यून्स। ठीक है। form under the highest velocity characterized by upstream migration bed forms and in a phase by wave surface wave। अब देखो ये जो आप इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बोल दिया कि जी एंटी ड्यून्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो एंटी ड्यून्स को जब आप अगर देखते हैं कहीं पे, तो एंटी ड्यून्स आपको बड़े अलग तरह के दिखाई देते हैं। जैसे कटे कटे फटे रहेंगे बेड्स जो है रिवर के। ठीक है। और चैनल टाइप का आपको बनता हुआ मिलेगा, और इस तरह का रिपल्स उठेगा। जैसे एंटीट्यून की अगर आप इमेज देखेंगे ना खोल के, तो आपको इस तरह के स्ट्रैटिफिकेशन दिखेंगे वहां पे कि परमानेंटली आपके जो है एंटीड्यून स्ट्रक्चर बन गए हैं किसी किसी जगहों पे। और स्क्रैचेस दिखाई देंगे ऐसे करके आपको ना बनते हुए, ये इस तरह का। ठीक है। पूरा आपको दिखेगा बकायदा, अगर आप स्ट्रक्चर देखें एंटीड्यून का, अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो एंटी ड्यून्स आपको इस तरह के दिखाई देंगे, जहां पे बहुत ऊपर तक कट्स लगा देता है ना रिवर के अंदर, जो आपकी ये रहती है वाटर फ्लो। क्योंकि स्पीड इतनी हाई है कि बहुत गहरा इम्पैक्ट वो करती है। हमें लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, पर फर्क पड़ता है। जैसे आप बोलते हो ना कि पत्थर के ऊपर भी अगर रस्सी डेली घिसती है तो उसका निशान हो जाता है, सेम वे जब आपकी वाटर की इतनी हाई वेलोसिटी थ्रू आउट द मानसून रहती है, तो वहां पे जो रॉक्स हैं या जो भी एरियाज हैं, उन पे आपको मार्क्स मिलेंगे बकायदा। ठीक है। वो एंटी ड्यून स्ट्रक्चर के ही मार्क्स होते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको वो एंटी ड्यून स्ट्रक्चर के ही मार्क्स मिलेंगे। और ये शायद ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये भी था, क्योंकि आजकल आपके जो है एडवर्स इवेंट बहुत ज्यादा इंडिया में हो रहे हैं, फ्लड भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये एक फ्लड और जियोलॉजी का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका काम बहुत इजी हो गया था, अगर जिसको ये मीनिंग थोड़ा सा पता था कि भाई चलती कैसे है रिवर, है ना। तो 65 में एक ही ऑप्शन आपका फिट बैठेगा, लोअर प्लेन बेड पहले आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके आएंगे जी स्मॉल स्केल रिपल, फिर लार्ज स्केल रिपल, फिर आपके अपर प्लेन बेड, और लास्ट में एंटीड्यून विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, आपको उनमें थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने बस पढ़ा, अरे मैंने तो ये कोई देखा ही नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन टीचर इसलिए नहीं पूछता कि ये पढ़े हुए हो।
कुछ क्वेश्चन आंसर अपने आप भी देते हैं वहां पे, लेकिन आपको उन पे सोचना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको राउंड 2 में करने होते हैं। पहले राउंड में तो आपको क्विकली जितने निकल रहे हैं वन वर्ड टाइप, यू शुड मूव ऑन। सो इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 65 टू ईच एंड एवरी वन, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 क्लियर है सबको? ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो जिसने भी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का थोड़ा बहुत आइडिया लिया है, वो इस क्वेश्चन को शायद ठीक कर पाया। अदरवाइज ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डीलेबल नहीं था लोगों के लिए, उनको डिफिकल्टी आई बहुत ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, जिस बच्चे ने रिपोर्ट के डाटा को थोड़ा देखा था, है 66 का, मैं बता रहा हूँ उसको अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो आप बोल रहे हो ना उसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें ऑर्डर देखना है। हमें देखो, आप लोग क्या करते हो, जैसे आपको दिखा कि एक डाटा अलग आ गया, भाई आपको क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पे लिखा होता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस वहां गलत है, लेकिन मुझे तो जो ऑप्शन दिए हैं चारों पांचों, उनमें से चूज करना है ना, उनमें से बेस्ट कौन सा है। तो बहुत बार होता है कि तीनों चॉइस सही, तीन ऑप्शन ठीक थे, लेकिन कॉम्बिनेशन सिर्फ दो का ही दिया हुआ है। ऐसा एक दो क्वेश्चन इसमें भी आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम इसकी सारी डिस्कशन करेंगे। ये कैसा है क्वेश्चन जो डील नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है स्टूडेंट में, हालांकि ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। कहता है अरेंज द फॉलोइंग क्लास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया। ध्यान रहे, कितना परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का ऑक्यूपाई किया हुआ है किस टाइप के फॉरेस्ट में, ये बात है इसमें। आप ये मत कहना कि किसका रेशो ज्यादा है। ज्योग्राफिकली कितना एरिया कौन कवर करता है एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कम से ज्यादा की तरफ, ये भी माइंड में बात रख लें। ठीक है, तो अब ये बात तो देखो, इसको जिन्होंने अगर डाटा रिपोर्ट नहीं भी पढ़ी होती तो उनके लिए भी एक बेनिफिशियल गेस यहाँ पे ये था कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्रब सबसे कम होते हैं कहीं पे भी, क्योंकि स्क्रब फॉरेस्ट में काउंट नहीं होते हैं। तो स्क्रबी वेजिटेशन सबसे कम होती है। ये एक लॉजिक मेंटली आपको लगाना था कि स्क्रब्स तो उस कैटेगरी में काउंट ही नहीं होते। ठीक है, छोटी मोटी झाड़ियों का आप पेड़ों में काउंट नहीं कर सकते या फॉरेस्ट में काउंट नहीं कर सकते। यस, दे आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, बट यू कैन नॉट कमेंट ओवर देयर इंटीग्रिटी विद द फॉरेस्ट। अब हम वन बाय वन इसमें डाटा पे चलते हैं। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है। तो परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का 9.3% है ना। 9.3% है, ये मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया कि 9.33% है, क्योंकि परसेंटेज ज्योग्राफिक एरिया के ऊपर ही ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट का 9.26। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का एरिया थोड़ा सा उससे ज्यादा है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको आप एक डिजिट में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 9.3 आएगा, है ना। और नीचे वाला जो है वो भी 9.3 के आसपास ही आएगा। अगर मैं एक देखो, अगर मैं इस डाटा को एक डिजिट में राउंडिंग ऑफ करूंगा एज पर मैथमेटिक्स, तो ये भी 9.3 बैठेगा। और जो करने वाले हैं उनको पता है ये भी 9.3 बैठेगा। इनको कोई डिनाई नहीं कर सकते दोनों। ठीक है, जिन्होंने भी साइंस पढ़ी है उनको ये बात पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस डाटा के बेसिस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। स्क्रब वेजिटेशन जो है उसका 1.42% है एज पर द डाटा ज्योग्राफिकल एरिया का। तो स्क्रब सबसे कम हो गया, ये बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, ट्री कवर जो है वो 2.91 है परसेंटेज, जो ज्योग्राफिकल एरिया इसका है ट्री कवर का, 2.91। क्या क्या इसमें आता है वो भी मेंशन किया है, ट्री पैच आते हैं, वट एवर इट इज। एंड देन वी हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट विच इज 3.04, है ना। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 3.04 है। ये डाटा आपके सामने रखा हुआ है सारा। ठीक है, तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ।
ठीक है, तो नीचे से आप स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे स्क्रब का जी 1.42 है। ठीक है, और ट्री कवर का 2.91 है, और 3.04 है डेंस फॉरेस्ट का। तो सबसे कम तो स्क्रब का है। जैसे आपके माइंड में आया स्क्रब का सबसे कम है, तो स्क्रब आपका सी पे है। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन बचेंगे, दो तो कट जाएंगे, ये भी गया और ये भी गया। ठीक है, अब सी के बाद डी दोनों में है, डी के बाद ई दोनों में है। अब आप कह रहे हो ए की बी। ठीक है ना, यही डिबेट छिड़ी हुई है कि ए है कि बी है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है, सर बी क्यों नहीं दिया इसका आंसर, या दो क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो जो आंसर दिया गया है उसमें ए को कम रखा गया और बी को ज्यादा रखा गया है। अब ए को कम रखने का कारण क्या है, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, और बी को ज्यादा रखने का कारण क्या है। ठीक है, तो ए को कम रखने का कारण आप देख देख पाएंगे, अभी मैं दिखाता हूं आपको, कि फॉरेस्ट आर डिफाइंड एज द फॉरेस्ट एरिया विच आर कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 40 टू 70% एंड दे रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेस्ट कवर। एरिया भी इनका 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, एंड क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाटर कंजर्वेशन। अब ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं हम। फॉरेस्ट एरिया विद कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 10 टू 40% एंड एरिया वाइज 3,04,449 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन नीचे वाली चीज को आप ध्यान से देखिए। ओपन फॉरेस्ट often represent region with the sparse tree cover which may be due to environmental conditions, human activity or natural degradation। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल डिग्रेडेशन। तो अगर यहाँ पे इस तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं कि इस पे एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ज्यादा होता है और वो इसकी परसेंटेज को घटाता है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा ही रहा है। और जबकि अगर राउंडिंग ऑफ करो तो दोनों की परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम आएगी। लेकिन इसको ज्यादा मानने का हमारे लिए क्या है, क्योंकि ये हम इसमें से बहुत सारी चीजें यूज भी कर लेते हैं, तो ज्योग्राफिकल एरिया तो इसका कम बैठेगा ना ज्यादा होने के बाद भी। जैसे मान लीजिए आपने अपने खेत पे शुगर केन लगाया, लिखा हुआ है ना देखो, माइनर फॉडर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो बहुत सारा हम इसमें से ले भी तो लेते हैं भाई, तो इसका परसेंटेज तो हम ही घटा रहे हैं ना। तो ये जो है, आप ये कह सकते हैं कि ओपन फॉरेस्ट डायरेक्टली कम इन कांटेक्ट विद द एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन ऑन एनी सॉर्ट ऑफ द इकोसिस्टम, दैट्स व्हाई इट्स परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया डिक्लाइन अ बिट। लेकिन एक्चुअली में ये सबसे ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ओपन फॉरेस्ट एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। और डाटा के हिसाब से भी अगर मैं जाऊंगा इस रिपोर्ट के, तो 9.3 दोनों का बैठ रहा है। क्योंकि अगर मैं इस डाटा को एनालाइज करूं तो ये 0.07% का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब रही बात कि ये आंसर क्यों नहीं लिया। अब क्या है कि अगर इसका आंसर एग्जामिनर बी भी देता तो कोई गलत नहीं कर सकता था उसको। लेकिन क्योंकि एनटीए ने फोर्थ दिया है, ठीक है, तो उसके पीछे जो लिटरेचर रिव्यू आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पैक्ट इनके ऊपर ज्यादा है, जो इसकी परसेंटेज को कुछ कम करता है। बिकॉज ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन ऑल्सो इनकी परसेंटेज कम होती है, बट एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ये क्रिटिकल है फॉर द सपोर्ट ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो, राइट। तो इस वजह से इनका वेटेज जो है हमेशा ही ज्यादा रहेगा ओपन फॉरेस्ट का एज कंपेयर टू मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो इसीलिए जो बी है वो आपका आगे है और ए आपका पीछे है। ठीक है, जो लोगों को एक डिबेट लग रही थी ना कि क्यों नहीं है, तो फोर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमने भी काफी लिटरेचर इसके बारे में देखा, तो जहां तहां परसेंटेज ऑलमोस्ट दोनों की सेम मिली। ठीक है, अभी क्लियर है मित्तल खत्री को कि क्यों हमने 4 नंबर लिया। देखो, एनटीए चालाक नहीं है, एनटीए का कुछ नहीं जाता है, एनटीए अपना पल्ला कभी भी झाड़ सकता है, उसके पास एक ऑप्शन है, ड्रॉप द क्वेश्चन। लेकिन आप तो ड्रॉप नहीं कर सकते ना। ठीक है, आप ड्रॉप नहीं कर सकते। एनटीए के पास दो चार पांच क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो एम्बिग्यूअस होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली में एम्बिग्यूअस होते हैं, और उनको जब वो रख रहे होते हैं तो उनको खुद भी पता होता है कि ये डाउट क्रिएट करेंगे, बट फिर भी वो रखते हैं। ठीक है, तो उससे हमें कोई घबराना नहीं है ना परेशान होना है, राइट। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। जो आपका सी है वो सबसे कम है, विच इज स्क्रब। ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये दोबारा रिपीटिशन मार सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है।
तो स्क्रब आपका सबसे कम हो गया, ठीक है। एंड देन वी हैव ट्री कवर, ठीक है। इस बार 16 to 17 क्वेश्चन इकोलॉजी से हैं, तो कोई बड़ा फैन इकोलॉजी का था, ठीक है। देन वी हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, एंड उससे ज्यादा आपका रहेगा जी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एमडीएफ, एंड फाइनली यू हैव ओपन फॉरेस्ट। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ओपन फॉरेस्ट हमेशा ही ज्यादा रहेगा और स्क्रब सबसे कम रहेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल डेफिनेशन में फिट ही नहीं बैठती ट्री कवर की, ठीक है। तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज फोर्थ। यहाँ पे चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली फिट नहीं बैठते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 67। 67 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 67 क्वेश्चन तो रिपीट क्वेश्चन है, पिछली बार भी रिपीट हुआ है, और ये 5-6 साल से ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, कि जो आपका नेशनल मिशन है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो आपका चल रहा है, उसके अंदर जो मिशंस आते हैं उनको डीएसटी कौन कौन से मिशन को सपोर्ट करता है। और ये जून वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं उठा के, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डिट्टो वही क्वेश्चन को रिपीट किया है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं बदला है, आप चेक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए आपसे क्या पूछता है। कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, एनएपीसीसी जिसको आप बोलते हो, आर टेकन अंडर द डीएसटी की जो नेशनल एक्शन प्लान है, ठीक है, जो मिशन चला हुआ है इंडिया में आपका, उनमें से कौन से मिशंस को डीएसटी सपोर्ट करता है। अभी मैं इसकी बात ही नहीं करता, मैं पहले ये देखता हूँ कि कौन कौन से तो एक्शन प्लान है और डीएसटी में किन का इंटरवेंशन है। तो सबसे पहले तो बात आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत आ रहा है क्वेश्चन, तो डिटेल आपको पता होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008। 2008 में ये आपने लॉन्च किया, और यहाँ पे हमने 8 कोर मिशन रखे थे अपने। वो 8 कोर मिशन कौन कौन से थे। एक तो नेशनल सोलर मिशन था, उसके ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फोकस एरिया क्या है वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे सारा, ठीक है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, और ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी आया हुआ है कई बार। दूसरा था नेशनल मिशन फॉर इन्हांसमेंट ऑफ द एनर्जी, राइट, नेशनल मिशन फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक मिशन था, है ना, जिसे आप कहते हैं। थर्ड मिशन था आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये थर्ड ऑप्शन था एक। चौथा मिशन था नेशनल वाटर मिशन आपका। पांचवा मिशन था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। छठा मिशन आपका था नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, ठीक है। सातवां मिशन आपका था जो यहाँ पे, दैट वाज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको एनएमएस से आप बोलते हो। ये आपको पता होने चाहिए सारे मिशन, क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन आया है। एट्थ मिशन था आपका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनएमएसकेसीसी। अब क्या है कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इनमें से जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये सब भी हमारा नेशनल मिशन के सपोर्टिंग मिशन है। बट आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि डीएसटी किसको सपोर्ट करता है। डीएसटी तो उसको सपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कुछ रिसर्च हो रही होगी, ठीक है। तो डीएसटी जो है वो मेनली आपका सपोर्ट करता है सस्टेनेबल, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम वाला जो है, और स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो मेन तो ये है, हालांकि वाटर मिशन को भी कंट्रीब्यूट करता है, सोलर मिशन को भी, लेकिन मेन जो मिशन है जिनमें डीएसटी का डायरेक्ट रोल है, वहां पे स्टडीज को, रिसर्च को प्रमोट करता है, वो सिर्फ दो ही प्रोग्राम है मेन। एक तो आपका है सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम वाला, ये जो है इसको डीएसटी फंड भी करता है और रिसर्च भी इसमें प्रमोट करता है। और दूसरा मिशन है आपका इसमें स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो नेशनल मिशन फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो ऊपर आपका मेंशन है, उसमें भी रिसर्च और इसको सपोर्ट करता है डीएसटी। डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे ना, इनके एजेंडा में है, और इनकी वेबसाइट पे भी आपको दिखेगा। तो ये दो मिशन ऐसे हैं 8 में जिनको डीएसटी खुल के सामने आके सपोर्ट करता है कि भाई
स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज में भी हम एक्टिव रोल प्ले करेंगे, जहाँ पे वो R&D को सपोर्ट करता है और रिसर्च स्कॉलर्स को भी सपोर्ट करता है। और सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आप कह लो, एक है मेजर साइंटिफिक रिसर्च में। तो इसलिए ये दोनों ऐसे हैं जिनको DST सपोर्ट करता है। बस जैसे ही आपको ये पता चला, तो आपके लिए आंसर चूज करना है इसमें जस्ट अ केक वॉक, कि विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल मिशन आर टेकन केयर अंडर DST। DST किसको देख रेख करता है? तो दो ही हैं ऐसे, एक तो हिमालयन इकोसिस्टम को बचाने के लिए जोर लगाता है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज में जो स्ट्रैटेजिक नॉलेज है उसके लिए जोर लगाता है। तो सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम और स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये दो ऑप्शन है B एंड D जो आपके दिए हुए हैं, जिनमें DST एक्टिव रोल प्ले करता है। बाकी सारों में एक्टिव रोल DST का नहीं है, बट यस दे आर द पार्ट ऑफ द 8 मिशंस। So that's why B and D is the correct answer, which is option number 2। तो कुछ क्वेश्चन आपको सोचने पड़ते हैं कि पूछा क्या है। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में पढ़ा और साइड कर दिया उसको, तो वो आप गलत ही करेंगे, फिर उसमें कुछ होगा नहीं। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? एनी वन हैविंग एनी डाउट टिल हेयर? जल्दी बताइए भाई, टाइम का थोड़ा सा अभाव है। क्विकली, क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है ढंग से, कि क्यों ऐसा है। ठीक है, चलिए जी, फॉर टुडे वी हैव केप्ट दिस मच, एंड वी विल कंटिन्यू इन द टुमारोज डिस्कशन। कल से हमारी दो सेशन, एक सेशन और बढ़ जाएगा। देयर विल बी अ सेशन ऑन 6 to 7 आल्सो फॉर डिस्कशन, राइट, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द लेटर पार्ट फॉर सम ऑफ द लेक्चर्स, राइट। और ये डिस्कशन आपका जल्दी पूरा होने वाला है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। क्विकली हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, उसमें कोई ज्यादा दो राय वाली बात ही नहीं है। बट चलना पीसफुल है, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। दैट्स एट मोस्ट नीडेड, कि दोबारा अगर आजू बाजू या प्लस माइनस कुछ भी वहां से रेज होता है, जो कि हो रहा है रिपीटेडली, क्योंकि जून वाले में से डायरेक्टली आपको 15-20 क्वेश्चन तो मैंने खुद देखे, और बाकी थोड़ा नियर अबाउट रहते ही हैं क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से उसको यूज करना है सोल्यूशन को। वो एक ऐसा एसेट है जो आपके पास ही है सिर्फ इंडिया में, उतना डिटेल्ड डेप्थ सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, तो उसको यूज करना भी आपका फर्ज बनता है अच्छे से। With this, I will stop here. We will start with the class immediately. Right? मैं एक immediately आपको अभी आईडी जो है शेयर करूंगा, उस पे हम क्लास जो है ज्वाइन करेंगे, राइट। तो सी यू guys tomorrow for the discussion. Now we will start with the small part which is left for the environmental chemistry.